Good morning students, welcome in science class. Yes beta, in the previous class we have discussed that the classification of animals on the basis of habitat. Okay, and we have discussed about terrestrial animals. Now today in this class we will discuss about aquatic animals, aerial animals, amphibians animals and arboreal animals. What are the features, what are the adaptive features they have that help these animals to adapt themselves in different surrounding. Okay, and we will discuss worksheet 2, that is on page number 77. Okay, so let's start the class. Open page number 76. Yes beta, now aquatic animals. Fish, prawns, crabs and turtles are some examples of aquatic animals. Aquatic animals कौन से होते हैं बेटा? The animals that live in water. ठीक है, जो पानी में रहते हैं, that animals are called aquatic animals. The body of the fish is covered with waterproof scales. जो बॉडी है फिश की वो वाटरप्रूफ स्केल से कवर्ड होती है. ठीक है. द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव पैडल्स. फॉर एग्जाम्पल टर्टल के क्या है बेटा? पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं. और फिन्स लाइक फिश दैट हेल्प देम टू स्विम. जो इनकी हेल्प करते हैं बेटा, पैडल लाइक फ्लिपर्स और फिन्स हेल्प करते हैं टू स्विम इन द वाटर. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स. दे हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड अ स्ट्रीमलाइंड बॉडीज दैट हेल्प देम टू स्विम. स्ट्रीमलाइंड बॉडीज इनकी हेल्प करती है स्विम करने में. स्ट्रीमलाइंड बॉडीज कैसी बॉडी होती है बेटा? द बॉडी दैट इज नैरो फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक एंड इन द मिडल द बॉडी इज ब्रॉड. ठीक है, बीच में बॉडी ब्रॉड होती है और आगे और पीछे से नैरो होती है. दैट बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड बॉडीज. डक हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम इन वाटर. डक की क्या होती है बेटा? वेब्ड फीट होते हैं, उनको हेल्प करते हैं वाटर में स्विम करने में. ठीक है. Whales and dolphins are mammals. Whales and dolphins are the mammals that live in water. They breathe with the help of blowholes. ठीक है, ये blowholes की हेल्प से breathe करते हैं. So this is the aquatic animals. These are the aquatic animals. Now beta, amphibians animals. Amphibians animals are the animals that live on land and in water are called the amphibians animals. ठीक है. They have lungs. They begin their life in winter in water but spend most of their adult life on land. Okay. Most adult amphibians have lungs to breathe. Okay. When on land they breathe through their lungs, but when on the water they breathe through their moist skins. Okay. They have lungs that help them. They have limbs that help them to walk on land and swim in water. Okay. Now beta, aerial animals. Animals that spend most of their time flying in the air are called aerial animals. They have wings to fly. They have hollow bones that make their body light, but bat is the only mammal that can fly. They have also streamlined bodies, ठीक है, that help them to fly in the air, and that animals are called aerial animals. Now beta, arboreal animals. Arboreal animals are the animals that spend most of their time on the branches of the trees. Okay, some examples of arboreal animals are monkeys, squirrels and perching birds, etc. These animals have sharp claws to climb up and down the branches. They have sharp claws. Monkeys swing from branch to branch and use their tails to balance themselves and grip the branches. With the help of tails, they balance themselves and grip the branches. Okay. They have strong muscular limbs that help them to climb trees. Now beta, our next topic is
एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? द एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. द डिस्टेंस फीचर दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर आर, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी हेल्प करते हैं पानी में रहने के लिए, दैट इज मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ. ठीक है, दे हैव गिल्स for breathing in water, for breathing in water. Many of them have streamlined bodies. They have streamlined bodies. Streamlined bodies क्या होती है बेटा? दोनों साइड से तो आपकी नैरो होती है और बीच से ब्रॉड होती है. ठीक है, that is streamlined bodies, and they have streamlined bodies which is narrow and slender in front, and this reduce friction due to water. ठीक है, दिस स्ट्रीमलाइंड बॉडीज अलाउ देम टू स्विम फास्ट इन वाटर. ये इनकी हेल्प करती है वाटर में जल्दी से मूव करने में, स्विम करने में. नाउ मैनी वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट. They have webbed feet. Many of the birds have webbed feet or paddle-like flippers, and these webbed feet and paddle-like flippers help them to swim. The gills in a crab. ये क्या है बेटा? क्रैब है. क्रैब में जो गिल्स होते हैं ये इनकी हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में. द पैडल लाइक लिम्स, ये दिख रही है ना बेटा आपको? पैडल लाइक लिम्स, ये पैडल लाइक लिम्स ऑफ अ टर्टल. दिस हेल्प इट टू स्विम. ये हेल्प करते हैं इसको स्विम करने में. फिश हैव फिन्स. फिश के पास क्या होते हैं बेटा? फिन्स होते हैं. फिन्स दिख रहे हैं ना बेटा? ये देखो, ये फिन्स. ठीक है, ये इसकी हेल्प करते हैं इसको मूव करने में वाटर के अंदर. Okay, so these are the special features that help aquatic animals to move in water, to breathe in water. Okay, now amphibians. Amphibians animals are the animals that can live both on land and in water. जो एनिमल पानी में, जमीन पे, दोनों में रहते हैं, that are called amphibians animals. The features which help them to live both on land as well as in water are, जो इनके फीचर्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं बेटा? सबसे पहले क्या है? They have gills. जो वाटर में रहते हैं जब वो पानी में जाते हैं तो उनके पास गिल्स होता है टू रेस्पायर, और जैसे वो लैंड पे आते हैं तो उनके पास क्या होता है? लंग्स होता है टू रेस्पायर. तो विद द हेल्प ऑफ गिल्स दे रेस्पायर इन वाटर, एंड विद द हेल्प ऑफ लंग्स दे रेस्पायर इन लैंड. दे हैव लिम्स टू मूव. इनके पास क्या होते हैं बेटा? ये पैर है. ठीक है, लिम्स मूव करने के लिए, और फिन्स होते हैं बेटा इनके पास स्विम करने के लिए. ओके, फ्रॉग्स एंड टॉग्स, they are cold blooded animals. cold blooded animals होते हैं बेटा, और they cannot bear very cold weather. ये ज्यादा कोल्ड वेदर को बियर नहीं कर सकते. दैट इज वाई जब बहुत ठंड हो जाती है they undergo winter sleep. ठीक है, they undergo a long winter sleep, जिसको हम क्या कहते हैं? hibernation. The long winter sleep is called hibernation. Okay, salamander have limbs. इनमें क्या है? limbs है. ठीक है, for swimming. एंड मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर. और इनकी स्किन मॉइस्ट होती है जो इनकी हेल्प करती है वाटर में ब्रीथ करने के लिए, और लंग्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं लैंड पे ब्रीथ करने में. नाउ नेक्स्ट विल बी एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? द एनिमल दैट फ्लाई, जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ सकते हैं, दैट एनिमल आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. ठीक है, नाउ the animal that fly, that are called aerial animal. These animal have hollow bones. इनके जो बोन्स होती है बेटा वो होलो होती है, जो इनकी हेल्प करती है फ्लाई करने में. दे हैव ऑल्सो स्ट्रीमलाइंड बॉडीज. ठीक है, इनकी भी स्ट्रीमलाइंड बॉडीज होती है जो इनकी हेल्प करती है फ्लाई करने में. स्ट्रीमलाइंड बॉडी पता है ना बेटा? आगे और पीछे से, फ्रंट और बैक से नैरो होती है और बीच में से ब्रॉड होती है. दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइंड बॉडीज. मोस्ट बर्ड्स हैव विंग्स. बहुत सारे बर्ड्स की विंग्स होती हैं जो उनकी हेल्प करती है फ्लाई करने में. दे हैव अ लाइट एंड होलो बोन्स. इनकी जो बोन्स होते हैं बेटा बिल्कुल लाइट और होलो होती है. दैट इज वाई दे कैन फ्लाई. ठीक है, their bones are filled with air. This give them the lightness needed for flying. Bats are the only mammals that can fly. सिर्फ एक बैट है जो एक मैमल है जो फ्लाई कर सकता है. इट्स विंग्स आर नॉट एक्चुअली विंग्स, दे आर एक्सटेंशन ऑफ इट्स स्किन. ठीक है, इट इज एन एरियल मैमल एंड इट इज एक्टिव एट नाइट. बैट जो है रात में ही एक्टिव होता है. लास्ट है बेटा एर्बोरियल एनिमल. एर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? द एनिमल दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एर्बोरियल एनिमल्स. लाइक स्क्विरल है, मंकी है. ठीक है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लो, जो उनकी हेल्प करती है बेटा
क्लाइम करने में. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स टू क्लाइम अप एंड डाउन द ब्रांचेस. दे यूज देयर टेल, वो अपनी टेल को यूज करते हैं ग्रिप बनाने में ब्रांचेस के ऊपर और स्विंग करने में. एंड सच टेल इज कॉल्ड प्रीहेंसियल टेल. ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है. स्क्विरल और ट्री के क्या होते हैं बेटा? दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. दे हैव अ टेल्स. ठीक है, देखो ये देखो, monkeys have long and curly tails that help them to swing from branch to branch to make a grip on the branches. ठीक है, सो ये इनके फीचर्स है जो इनकी हेल्प करते हैं ब्रांचेस पे रहने के लिए. ओके बेटा. नाउ बेटा वर्कशीट 2, क्वेश्चन नंबर 1. Unscramble the words to reveal the names of aquatic animals. That is ARBC. तो ये क्या है बेटा? crab, CRAB. CRAB. Now ETRTULE, that is turtle, TURTLE. HSIF, that is fish, FISH, fish. Now question number 2. Fill in the blanks with the words given below. Aquatic animals have dash to respire, that is gills. Aquatic animals have gills, GILLS. Now frogs and toads are cold-blooded animals. Cold-blooded animals. The paddle-like limbs of turtle help them to swim. Turtle के paddle limbs होते हैं जो उनकी help करते हैं swim करने में. Okay. Now question number 3. Match the following. ये क्या है बेटा? What is this? This is Arctic tern. ठीक है ना? ये है. और इसकी क्या होती है बेटा? होलो बोन्स, एरियल एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? स्क्विरल्स है दैट हैव अ क्लॉज एंड फिश दैट हैव अ लॉन्ग एंड कर्ली टेल्स. ओके, सॉरी, दैट हैव अ फिन्स एंड मंकी हैव अ लॉन्ग एंड कर्ली टेल. ओके, सो बेटा यू हैव टू रीड पेज नंबर 76 and do the worksheet that is on page number 77 in book. Okay, thank you. Have a nice day. Bye bye.